کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بیک ٹو ولیج 3 کی مناسبت سے کنجر اور ٹنگمرگ کے مختلف مقامات پر پروگرام انعقاد کیے گئے۔ کنجر کے دیوبند کھائی پورہ میں یوٹی کی وزارت داخلہ کے ڈپٹی ہوم سیکرٹری محمد یعقوب ملک نے بطور وزٹنگ آفیسر پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے مختلف مقامات پر کئی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کئی اہم کاموں کا افتتاح کیا۔ کنجر کے دیوبند میں کلوٹ، پنچایت گھر، قبرستان کی دیوار بندی کا بھی افتتاح کیا گیا۔ ہردمنی میں ایک رابطہ سڑک کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کنجر کے وائلو اور بابا کھائی پورہ میں ایس ڈی ایم گلمرگ شبیر الحسن نے کئی کاموں کا افتتاح کیا۔ یہ ڈیمانڈ سے گورنمنٹ کو جائیں گے تو ان کو پرائرٹائز وہاں پہ کریں گے، کون سی یہ ڈیمانڈ جو ضروری ہوگی وہ سیریلی ان کو ایڈریس کو ایشوز ہو جائیں گے۔ 2-3 ڈیمانڈز انہوں نے مجھے بھی بولی یہاں پہ آ کر، ان کے میڈیکل سب سینٹر کا مسئلہ تھا، روڈ کا مسئلہ ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل ہیں جو امیڈیٹلی حل ہو سکتے ہیں۔ یہاں 6 کام کمپلیٹڈ ہے جو B1 B2 میں ہے، ان کی اناگریشن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فاؤنڈیشن اسٹون بھی 4-5 کاموں کا ہے، 10 کام ہے جو ان پروگریس ہے۔ اس کے بعد باقی کام بھی ہم نے ریویو لیا ہے۔ کوئی بھی کمپلینٹ ہوگی ان کی وہ پنچایت پہ ہی سالو ہو جائے گی۔ یہاں پہ پراپرلی فنکشنل آفس ہو جائے گا۔ اور جو بیک ٹو ولیج پروگرام ہے آج یہاں پہ اس کا 3rd ڈے ہے، یہ اچھے سے یہاں پہ ہو گیا، لوگوں کی اچھی پارٹیسپیشن ہوئی یہاں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی، اور ایس ڈی ایم صاحب نے بھی آج سب ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ ان کے کیا کیا یہ تھے، لوگوں سے ان کی ڈیمانڈس پوچھی اور جو ڈیمانڈ وہ سالو کر پائے آن دا سین۔ بلاک دیوس کے سلسلے میں پلوامہ کے مختلف بلاکوں میں پروگراموں کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں پلوامہ بلاک کے تحت آنے والے علاقوں کے لوگوں کی مطالبات کو سنا گیا۔ ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر رگو لنگر کی سربراہی میں ٹاؤن ہال پلوامہ میں مختلف سرکاری محکموں کی جانب سے عوام کی سہولیات کے لیے خصوصی اسٹال قائم کیے گئے تھے۔ بیک ٹو ولیج 3 پروگرام کے تحت پنچایتی حلقہ چوگام بلاک دیوسر کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ سرپنچ وجے رینا، ایس ایچ او قاضی گنڈ ارشاد احمد کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی۔ چوگام میں منعقدہ تقریب کے دوران اسکولی طلباء میں کھیل کود کا سامان تقسیم کیا گیا۔ جو تھوڑا سا ڈائیورٹ سا ہوا ہے، لیکن اگر اس کو انگیج کیا جائے کھیل کود کے مادھیم سے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ابھی ہمارا T20 میچ چل رہے ہیں ورلڈ لیول پہ، جس میں ہمارے JNK کے بھی کچھ بچے ہمارے وہاں پر ہونہار بچے انہوں نے اس میں سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی جتنا بھی ہمارے یہاں جو کھیل کود سے ریلیٹڈ جو ہمارے بچے ہیں، ان کو جب ان کو ایک قسم سے گورنمنٹ کی طرف سے سارا ہیلپ ملے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو JNK ہے سب سے اوپر ہوگا۔ جیسے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کا تاج ہے، ویسے ہی پھر سے سپورٹس میں ہم JNK کو ہندوستان کا تاج لے۔ کپواڑہ ضلع کے ترش کنڈی میں بیک ٹو ولیج 3 پروگرام میں لوگوں نے سڑکوں کی خستہ حالی، پانی، بجلی اور دیگر مسائل کو اجاگر کیا۔ لوگوں نے الزام عائد کیا کہ پچھلے بیک ٹو ولیج پروگرام میں جو کام سرکار کی نوٹس میں لائے گئے تھے ان کا آج تک نپٹارہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان کے مسائل کا فوری طور پر نپٹارہ کیا جائے۔ میرے ساتھ کمٹمنٹ کی میں آپ کے علاقے کو کروں گا ٹھیک، پہلے آپ کا روڈ کا مسئلہ میں کروں گا، آج تک وہ نہیں آیا۔ انہوں نے بولا 10 لاکھ روپے، میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ آیا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ سرپنچ بالکل تیسرا جو بیک ٹو ولیج ہے نا، یہ انہوں نے موقری ہمارے ساتھ یہاں لائے کرنے کے لیے۔ دیکھو یہاں تو ہمارے ورکر ہے، جو آنگن واڑی ورکر ہے، یہ ہمارے لوکل ہیں، ان سے کیا ہم ڈیمانڈ دے دیں گے؟ جو ہمارا بجلی کا محکمہ ہے، یہ اگر 4 مین آتا تھا، JE آتا تھا، اس کا اسٹنٹ آتا تھا تو ٹھیک ہوتا۔ لائن مین بیچارے بیچ ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری روڈ کی حالت کا مسئلہ ہو، تو اب اس لیے جو ہے آج پبلک جو ہے اور انکلوڈنگ ولیج پنچایت جو ہے ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے اس جو ہے بیک ٹو ولیج فیز 3 جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ ان کی جو یہ ڈیمانڈ ہے بالکل یہ ہرب ہرب صحیح ہے کہ آج تک ہمارے پاس جتنے بھی، میں سبھی پنچایت میں جایا کرتا ہوں اور ہر جگہ یہی دیکھتا ہوں میں کہ کسی بھی جگہ کوئی ذمہ دار آفیسر نہیں ہے۔ ان ملازموں سے کہنا چاہوں گا جو آج تک یہاں پہ نہیں آئے، میں ان کو یہاں سے آخری بار بتا رہا ہوں کہ آپ کو موقع ایک اور دیا جا رہا ہے لوگوں کے یہ مسائل حل کرنے کے لیے، نہیں تو آپ کے ساتھ پھر کچھ ایسا سلوک ہوگا جس کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے۔ ہماری جو بھی جنوین ڈیمانڈس ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے ہیں، کرنٹلی یہ پرابلمز ایگزسٹنگ ہیں صرف، تو سرکار تک بات پہنچاؤں گا۔ میرے پاس اس وقت میں وزٹنگ آفیسر کی حیثیت سے اس وقت کام کر رہا ہوں یہاں۔
कुपवाड़ा जिले के कबाब मगरी हाइन में लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम का बाइकआउट किया। लोगों ने पंचायत अराकीन के हमरा प्रोग्राम में जाने से इनकार किया। लोगों का इल्जाम था कि पिछले बैक टू विलेज प्रोग्राम से लेकर आज तक इलाके में तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं हुआ है। दफ्तर पे फ्योरस बह सिर्फ चीज नजर आज सरपंच वात कह फंड 10 लाख या 5 लाख तमाम महकम सरपंच सबस नजर न गई गोकिस मज तो न गई सेकंडस मज आज 3 फेज बैक टू विलेज वो ये उम्मीद है आवाम ये आमुत ये पे वो क्या ये किस तरह बैठे हैं, आस लगा के बैठे हैं और इनके दिल में उम्मीद है कि आज फर्स्ट फेज में नहीं हुआ, सेकंड फेज में हुआ, लेकिन इंशाल्लाह तीसरे फेज में इंशाल्लाह हो जाएगा। बैक टू विलेज के तहत डीसी शोपियां ने चकसदापुरा शोपियां का दौरा किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, तहसीलदार और कई आला अफसरान मौजूद थे। डीसी ने गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चकसदापुरा पाइन का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम के दौरान डीसी ने क्रिकेट खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम किए। चक सैदपुरा है, उसकी इनॉग्रेशन भी की है। यहाँ पे 95 बच्चों का एनरोलमेंट है और स्कूल में काफ़ी कमी थी। उसके अलावा थोड़ी और जो लोगों के मसाइल थे, कुछ और रोड लिंक्स जिनकी मैग्नेमाइजेशन या अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी, यहाँ कुछ एक प्रोटेक्शन बंड या कल्वर्ट्स वगैरह, उन सब का भी जायज़ा लिया गया। ये थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, इसीलिए इधर ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी था। मैं खुद इसलिए इसी वजह से पीर की गली दरगाह के निगरान ने वक्फ बोर्ड की जानिब से अतिया दान को बंद करने के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार और वक्फ बोर्ड ने इनको इतला दिए बगैर पैसों के बॉक्स को लॉक किया। उन्होंने कहा कि दरगाह का खर्च और लोगों की खिदमत इन पैसों से की जाती थी। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपील की कि इस मामले में मुदाखलत की जाए। श्रीनगर पे पीर की गली आम तहसीलदार साहब ओतर तमो कर्म सील तकिस सेपस सह तम जियारत गई उम्र पे पकान आई न इन्फॉर्मेशन दिन चीज़ दिन तहसीलदार श्रीनगर यम जन सील कर्म नश तिहज इन्फॉर्मेशन वसम कह मेहरबानी कर तम गुजारिश तम गश नश वातन। वहाँ पब्लिक आती है और रात और दिन पर चलती है, उनकी खिदमत हम करते हैं, चाहे हम चाय देते हैं, चाहे उसको खाना देते हैं, चाहे कपड़ा नहीं होता तो लकड़ी हम 35,000 की तकरीबन हमें गाड़ी पड़ जाती है। अगर वो इतने दिन बंद रहेगा या कितने देर बंद रहेगा वो हमें पता नहीं, तो और हम क्या खाएंगे और लोगों को क्या देंगे क्या। अवंतपुरा में ज़ेर तामीर एम्स अस्पताल का काम निहायत ही सुस्त रफ्तारी से चल रहा है, जिस पर मकामी आबादी ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ दीवार बंदी की गई है और बाकी काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। लोगों का मजीद कहना है कि अभी तक ज़मीन फराहम करने वाले किसानों को भी मुआवजा फराहम नहीं किया गया है। जो एम्स यहाँ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट अवंतीपुरा में बनने जा रहा है, बेसिकली जो इस पे ज़मींदारों की चली गई, आज तक काफ़ी ऐसे 300 कनाल ज़मीन है यहाँ के लोगों के ज़मींदारों के जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं मिली। ऐसे हमारे शॉपकीपर जो यूथ है जो डिस्प्लेसड हो गए रोड वाइंडिंग से, जो एम्स के लिए बना रोड, और उन लोगों के लिए भी वो दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं हमारे जवान। उनके जो तकरीबन 20 दुकानें वो भी चले गई। दूसरी बात, जो अभी पेंडिंग हमारी पेमेंट्स है, जो स्ट्रक्चर्स हमारे उठ गए, हाउस जो हमारे उठ गए, उनकी 20% स्ट्रक्चर्स, कुछ एज बार स्ट्रक्चर्स और एटलीस्ट 50% अभी पेमेंट उनको बाकी देनी है। और जो हमारा पैच ऑफ लैंड इन बिटवीन IUST और एम्स के दरमियान है, तकरीबन 3000 कनाल, गवर्नमेंट हमारे लोगों को उस पर कंस्ट्रक्शन करनी नहीं देती है, जबकि अवंतीपुरा टाउन तकरीबन 80% फ्लड। पापुर में मार्शल आर्ट खेलने वाले खिलाड़ियों ने कस्बे में इंडोर स्टेडियम की मांग की है। उनका कहना है कि उन्हें सर्दियों में खेलने में मुश्किलात पेश आती हैं। उन्होंने इंतजामिया से इलाके में इंडोर स्टेडियम कायम करने की मांग की। विंटर्स आ रहे हैं और बारिश बर्फ हो रही है फिर, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम, और उस वक्त हमारी प्रैक्टिस रुक जाती है। और जो कि सर्दियों में ही हमें नेशनल इंटरनेशनल के कॉम्पिटिशन्स खेलने होते हैं, जो हमारी स्टॉप होती है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से, तहसीलदार से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से और आला हुकाम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ सर, कि हमारी ये जो देरी ना मांग है ये पूरी की जाए। रेडियो मिर्ची की जानिब से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रेडियो मिर्ची की आरजेज ने पुष्या मित्रा उपाध्याय की नज़्म के जरिए ख़वातीन को पैगाम दिया है।
छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपनी चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो दुस्शासन दरबारों से? स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है। उठ सीधी है जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। लेके डीसी सचिन कुमार ने आने वाले LHDC इलेक्शन के लिए इलेक्शन SOPs को लेकर न्यूज़ 18 को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तमाम तर इंतजामात किए गए हैं और लोगों से अपील की कि इलेक्शन में हिस्सा लें और कोरोना वायरस से मुताल्लिक इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए अहकामात पर अमल करें। एज पर शेड्यूल जो नोटिफिकेशन आया था कि शेड्यूल्स, तो उसके हिसाब से नॉमिनेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जितना भरना था लोगों ने भर दिया है, कैंडिडेट्स ने, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने। मशीन से इस बार हो रहा है, तो सारी चीज़ें तैयार हैं। साथ ही साथ SOP इस बार कोविड से रिलेटेड जो है वो भी फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्शन कंडक्ट कराने में हो, चाहे वो कैंपेनिंग में हो, सारा चीज़ों में। तो जो भी, क्योंकि इस बार जो जितने भी ROs, AROs या फिर जो हमारे जोनल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी ब्रीफ किया गया है थ्रू ट्रेनिंग की क्या क्या चीज़ें उनको करनी है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अर्ज करता हूँ कि जो भी कंडीशंस लगाई जा रही हैं उसको लेटर स्पिरिट में फॉलो करें। करगिल में 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल हमलिसानी हुसैनी मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। लद्दाख अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस की जानिब से प्रोग्राम का इनक़ाद किया गया। लैंग्वेज सेंटर न्यू अकेडमी कॉम्प्लेक्स करगिल में प्रोग्राम को मुनक़्क़िद किया गया। मुशायरे में शिरकत करने वाले शोरा ने शोहदाए करबला को अपने अशार के ज़रिए खराज अक़ीदत पेश किया और करबला के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। प्रोग्राम की सदारत मकबूल शायर अक़मनी असग़र अली बशारत ने की है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस करगिल इफ्तिखार तालिब ने स्टूडेंट लाइब्रेरी रिस्पोन करगिल का इफ्तिताह किया। स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट करगिल ने लाइब्रेरी की तामीर में काफ़ी मदद की। करगिल में तालीम का माहौल बनाने के लिए लाइब्रेरी का मकसद है। DC गांधरबल ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए आधार एनरोलमेंट सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर मौजूद थे। ऐसे सेंटर ज़िले के मुख्तलिफ स्कूलों में कायम किए जाएंगे ताकि लोगों को राहत मिले। ज़ेरीपुरा गांधरबल के लोगों को पीने के पानी को लेकर मुश्किलात का सामना है। ज़ेरीपुरा के बाशिंदों का कहना है कि उन्होंने कई मरतबा इंतज़ामिया का दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों का कहना है कि वाटर रिजर्वायर को खुला छोड़ा गया है जिसकी वजह से इसमें कई तरह की गंदगी मिल जाती है। उनका कहना है कि इनके घरों तक पानी तो आता है मगर पानी काफ़ी गंदा होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के पानी से बीमारी लाहक है। जल शक्ति महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल के मुताबिक ज़ेरीपुरा वाटर सप्लाई स्कीम को मुकम्मल करने के लिए इंतज़ामिया पूरी कोशिश कर रहा है। ज़िला पुलवामा के काकापुरा तहसील के कई देहात गुज़श्ता 1 साल से सड़क राब्ते से बिल्कुल महरूम हो गए। लेलाहारा काकापुरा में नाला रुमशी पर पुल में शुगाफ पैदा होने से पुल को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई देहात काकापुरा और पुलवामा ज़िला हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया। यही नहीं, पुल गैर महफूज भी है, यहाँ कोई बड़ा हादसा होने का खतरा है। उधर मकामी लोगों ने बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी ये मसला उठाया। मुतल्लिक़ अफसर ने कहा कि पुल की तामीर को तरजीही कामों में शामिल रखा गया है। बेरवा के बंडागाम में गुज़श्ता 15 सालों से राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली की शिकार है, जिसके चलते लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया बडगाम के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि बंडागाम से रावजोन और वडून तक सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। बानीपुरा के हाजन बंगर मोहल्ला इलाके के लोगों का कहना है कि इलाके में अगरचे 1 माह कबल मोहल्ले से गुजरने वाली सड़क की तजदीद और मरम्मत का काम शुरू किया गया, तहम बाद में इस काम को अधूरा छोड़ा गया। लोगों का कहना था कि मुतल्लिक़ा महकमे को बार बार मुतला करने के बावजूद भी सड़क को काबिल आमद रफ्त नहीं बनाया जा रहा है। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।